Good morning, everyone. Good morning, all of you. Namaskar, Assalamu alaikum. My name is Pramod Pruthi and I belongs to Chandigarh. So I'm very excited to be a part of this morning's club meeting session. It is a powerful session. It is a powerful session. Yes, my dear friends, body needs strength, and the strength comes from good healthy diet. Similarly, mind needs good thinking, and it comes from knowledge. And this MCM session is a perfect diet for mind. And in 2018, yes, in March 2018, I joined Indus Viva. And my mentor taught me a lesson that if you want to become a successful person, Pramod, if you want to become a successful person, do one thing. I'm asking what I do. He says, only one formula, that is, see more people, show more plan. See more people, show more plan in your daily routine. And he also taught me a lesson in March 2018. The lesson was, there are some reasons for failures. And I will discuss with you, with all of you, those reasons of failures. Let's talk about those reasons, and I will share a PPT with you, and you can see my PPT. Latika, is it okay? Is it okay? Yes, sir. Reasons for failure. My mentor taught me a lesson for failures in March 2018. There are some points, and I clearly read these reasons, and I take commitment that I will never do these things. So moving ahead, yes, my dear friends, number one, a big reason you can see on your screen, no written goals. Number one, a big reason of failure, no written goals. Does not know what he wants out of life. What is the purpose of my life? Nobody knows. दोस्तों, वो लोग जो हैं, जो फेल हो जाते हैं, या फेल हो जाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि लोगों के पास रिटन गोल्स नहीं होते। उनको ये नहीं पता होता कि मुझे अपनी लाइफ में क्या हासिल करना है। ये सबसे बड़ा कारण होता है फेल होने का, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। नो रिटन गोल्स, डज नॉट नो व्हाट ही वांट्स आउट ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? नो, he does not know. Moving to the next point, no directions, no visions, and no dreams. Always confused. Should I become successful or not? Maybe I become. No directions, no visions, always confused, always confused. Should I become executive diamond or not? I think I not. Always confused. My dear friends, no directions, no vision, no dreams, and confusions will make you a loser, will a big reason of failure. Please note this point. You can take a screenshot of this point. Number three, no serious commitment to the business. Hence, no serious action taken. No serious commitment. किसी भी प्रकार की कोई कमिटमेंट नहीं है अपने बिजनेस के लिए, और जब कमिटमेंट नहीं है तो उसके लिए सीरियस एक्शन भी नहीं है। So, no serious commitment. The third reason of failure. Number four, moving ahead, number four, gives up soon, usually quit in the first 90 days. In my 5 years journey
in my 5-year journey, I saw so many peoples who gives up very, very soon. Earlier, in 90 days, so many peoples quit the industry, so many peoples quit the business. दोस्तों, मैंने अपनी जर्नी में पिछले 5 साल में ये देखा है कि लोग जो हैं पहले 90 दिन के अंदर, फर्स्ट 90 डेज जो होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं और इसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो गिव अप कर देते हैं। एक इंसान जिसको 4 लोग अच्छे मिल जाएं, कमिटेड मिल जाएं, जिसको 4 लोग पॉजिटिव मिल जाएं, वो इस बिजनेस में जिंदा रहता है, वो इस बिजनेस को कंटिन्यू करता है। और एक इंसान जिसको पहले 4 लोग नेगेटिव मिल जाते हैं तो वो इस बिजनेस को क्विट कर देता है, गिव्स अप सून। So, my dear friends, the next point is very, very lazy, wants to reap the rewards of his downline efforts without working. Wants to reap the rewards. He always take the rewards of his downline. दोस्तों, बहुत ही ज्यादा ये इंसान आलस में रहता है, काम नहीं करता और ये सोचता है कि मेरी डाउनलाइन एफर्ट्स लगाए, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मेरी डाउनलाइन काम करे और मैं उसका रिवॉर्ड मैं ले लूं कि मेरी वजह से इन लोगों ने काम किया है। ये एक और कारण बनता है इस बिजनेस में फेलियर होने का। सो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट के ऊपर हम बात करें। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 1 पॉइंट इज नो रिटर्न गोल्स। कोई गोल्स नहीं है, वो ये नहीं जानता कि अपनी जिंदगी में मुझे क्या करना है, उसकी लाइफ का जो गोल है, उसकी जो लाइफ का पर्पस है उसको नहीं पता, और उसके पास कोई दिशा नहीं होती, उसके पास कोई ड्रीम नहीं होता और वो कंफ्यूज रहता है, खोया खोया रहता है, और वो कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं लेता अपने बिजनेस के लिए। और अगर हम बात करें, अगर उसके पास कमिटमेंट्स नहीं है तो उसके साथ साथ वो एक्शन भी नहीं ले पाता, बहुत जल्दी गिव अप कर देता है, पहले 90 दिन के अंदर हार मान लेता है, नेगेटिव लोग उसको मिलते हैं, नेगेटिव बातें सुनकर वो इस बिजनेस को क्विट कर जाता है, और ये उसका जो हार का जो लेवल है, उसका जो अचीवमेंट है वो उसको मिल जाती है। लेजी रहता है और दूसरों के काम का रिवॉर्ड लेना चाहता है कि ये मेरी वजह से हुआ है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना, हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है और इन चीजों से हमें बच के रहना है। कामयाबी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ज्यादा लोगों को मिलो और ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दो, ज्यादा लोगों को अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताओ, ज्यादा रिटेलिंग करो। Next point is resentful of appliance earning. This is self-defeating attitude. Oh my God. Resentful of upline earnings. Always see his upline earnings. Always see his payout. He don't think about his payout. He don't think about his achievement. This is self-defeating attitude. दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी अपलाइन के चेक को देखते हैं और उनके चेक को देखकर, उनके पे आउट को देखकर उनको गुस्सा आता है, और ये चीज जो है उनको पीछे धकेल देती है और वो इस बिजनेस में नाकामयाब हो जाते हैं। अपलाइन ने जहां से शुरू किया, अपलाइन का बिजनेस वहां से शुरू होता है। मैंने जिस जगह से शुरू किया, मेरा बिजनेस वहां से शुरू होता है। डोंट लुक अप, don't look left, don't look right, always look down. हमेशा नीचे देखिए, और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो नीचे देखिए, ऊपर मत देखिए, लेफ्ट में मत देखिए, राइट में मत देखिए। आपकी अपलाइन को कितना पे आउट आ रहा है, आपकी क्रॉस लाइन को कितना पे आउट आ रहा है, कोई इससे आपका लेना देना नहीं है। आपकी डाउन में कितना काम हो रहा है, आपकी डाउनलाइन को कितना पे आउट आ रहा है, इससे आपको लेना देना है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फॉर द लिटिल एफर्ट दैट ही पुट्स इन। ही पुट्स लिटिल एफर्ट, he show only one plan, and he think about a payout of 1 lakh rupees weekly.
which is totally unrealistic. If you want big, you have to put your maximum efforts. दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं तो आपको थोड़ा ही रिजल्ट मिलेगा। एक प्लान डेली दिखाकर आप 1 लाख रुपए हफ्ते का नहीं सोच सकते। अगर आप 1 लाख रुपए हफ्ते का कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतने ज्यादा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फॉर द लिटिल एफर्ट दैट ही पुट्स इन। You have to put your maximum efforts. Third point, next point, too impatient, wants to make big money too soon without being willing to put out the necessary effort. बहुत जल्दी वो अपने धैर्य को खो देता है। वो बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहता है, बहुत तेजी से पैसा बनाना चाहता है। वो चाहता है कि रातों रात वो यहाँ पर करोड़पति बन जाए, जो इम्पॉसिबल है। और ये सबसे बड़ा कारण होता है उसकी नाकामयाबी का, उसके फेल्यूर का। फ्रेंड्स, मूविंग अहेड, complains too much and acts like an immature crybaby. बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स करता है वो, बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट्स करता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे एक छोटा बेबी होता है और वो जब कोई बात उसकी नहीं पूरी होती, जब उसको कुछ नहीं मिलता तो वो रोना शुरू कर देता है। ठीक वैसे ही एक फेल्यूर इंसान जो होता है, जो फेल हो जाता है, उसके अंदर ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि वो ज्यादा कंप्लेंट्स करता है और ज्यादा कंप्लेंट करने के साथ जब कुछ उसको नहीं मिलता तो वो रोना शुरू कर देता है, विच इज वेरी बैड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। easily influenced by negative comments from family members, relatives and friends, don't listen to positive side, can't think for himself. वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है नेगेटिव कमेंट्स से। वो कमेंट्स जो उसकी फैमिली के लोग बोलते हैं, वो नेगेटिव कमेंट्स जो उसके रिलेटिव बोलते हैं कि तुम कामयाब नहीं हो सकते, ये बिजनेस बेकार है और इसमें कुछ नहीं है, ऐसी बातों से वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है और इस बिजनेस को वो छोड़ देता है। वो कभी भी अपना पॉजिटिव साइड नहीं सुनता कि वो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इन चीजों को हमने अपने दिमाग में रखना है और इनसे हमें दूर रहना है। इन पॉइंट्स के ऊपर हमें काम करना है और कोई भी ऐसी चीज हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए कि हम नाकामयाब हो जाएं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज गिव टू मैनी एक्सक्यूजेस। बहुत सारे एक्सक्यूजेस देता है। आज बहुत ठंड है, आज बहुत गर्मी है, मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, आज मेरी फैमिली के अंदर कोई फंक्शन है। इस तरह के वो एक्सक्यूजेस जो है वो हमेशा देता है, काम से जी चुराता है, अपना दिल चुराता है और ये चीज जो है उसको नाकामयाब बना देती है। You did not go for excuses, always go for your actions, always go for new plans, always go for counselings with downline, never give excuses. So a failure person always gives so many excuses. Next, thinks he knows everything. उसको लगता है कि वो सब कुछ जानता है, जबकि ऐसा नहीं है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। He thinks he knows everything, which is wrong. Next point, keeps switching to other network marketing companies. दोस्तों, थोड़ा सा काम करने के बाद उसको फील होता है कि नहीं, ये कंपनी ठीक नहीं है और मुझे दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। दूसरी कंपनी में थोड़ा सा काम करने के बाद उसको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए। कंपनीज बदलने से कभी भी कोई इंसान कामयाब नहीं हो सकता।
नेटवर्क बिल्ड करके इंसान कामयाब हो सकता है। सो कीप स्विचिंग टू अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, दिस इज अनदर रीजन ऑफ फेल्यूर। You have to keep away from these reasons. Only interested in personal profit. He always believed in his personal profit. He don't care about his team payout. He don't care about his team growth. उसको सिर्फ अपने प्रॉफिट से लेना देना है कि मेरा पे आउट कितना बना, मेरा डैशबोर्ड में पीवीज कितने मैच हुए। उसको ये नहीं पता कि उसकी टीम में उसके कितने स्टार 250 स्टार 500 बनने जा रहे हैं, उनका क्या पे आउट है, उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वो सिर्फ अपने पर्सनल प्रॉफिट के बारे में सोचता है, इसलिए वो इस बिजनेस में फेल हो जाता है। Unwilling to take risk, he waits and watches thing happen instead of making thing happens. वो कुछ होने का इंतजार करता है, और जबकि कुछ करके कुछ किया जा सकता है इसके ऊपर वो बिलीव नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है जब तक हालात नहीं बदलेंगे, जब तक हालात नहीं बदलेंगे, जब तक चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं होंगी, मैं इस बिजनेस को आगे नहीं करूंगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा, हमें काम करके हालातों को बदलना है। अनविलिंग टू टेक रिस्क, ही वेट्स एंड वॉचेस थिंग हैपन इंस्टेड ऑफ मेकिंग थिंग हैपन्स। दोस्तों, ज्यादा हमें एक्सक्यूज नहीं देने, हमें ज्यादा से ज्यादा लर्न करना है, लर्न करने के लिए हमेशा तैयार रहना है, और हमें एटलीस्ट 3 साल दूसरी कंपनी के बारे में नहीं सोचना, उसके प्लान के बारे में नहीं सोचना, ना उसको सुनना है ना देखना है, और कभी भी अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना। हमने लोगों के प्रॉफिट के लिए काम करना है, उसके लिए एफर्ट्स लगानी है, और कभी भी चीजें क्रिएट नहीं होंगी, हमने क्रिएट करनी है। तो ऐसा करके हम कामयाब होंगे, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। तो इन चीजों से हमें दूर रहना है। स्टे अवे फ्रॉम दीज पॉइंट्स। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बात करेंगे हम डिपेंड्स ऑन स्पिल ओवर बाय अदर पीपल्स एफर्ट्स, वांट्स समथिंग फॉर नथिंग। दोस्तों, वो हमेशा अपलाइन से डिमांड करता है, अपने सीनियर से डिमांड करता है कि कुछ लोग उसकी टीम में अपलाइन द्वारा लगा दिए जाएं, कुछ बिना किए उसका काम चल जाए, जो इम्पॉसिबल है। और ऐसा सोचने से हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं, हम अपनी ग्रोथ के ऊपर अंकुश लगा देते हैं। तो उससे बेटर यह है कि हम कुछ करें। इन द रॉन्ग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, लोग इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि वो एक गलत नेटवर्क मार्केटिंग को चूज कर लेते हैं। अ रॉन्ग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, decision to join a wrong network marketing company is a big reason of failure in this industry. And we all know, और हम सभी जानते हैं कि हम इंडिया की सबसे एथिकल कंपनी के साथ जुड़े हैं, जिसका नाम है इंडस विवा, और हमें ये गर्व होना चाहिए। वी हैव टू प्राउड ऑन दिस कंपनी। He is not contacting to his upline and downline in regular manner. This is another reason of failure. He is not contacting to his upline and downline in regular manner, in regular intervals. वो अपनी अपलाइन के टच में नहीं रहता, उनको कांटेक्ट नहीं करता, उनसे एडवाइस नहीं लेता, उनसे डायरेक्शंस नहीं लेता, और साथ ही साथ वो अपनी डाउनलाइन को भी टच नहीं करता, उनको डायरेक्शंस नहीं देता, और उनके साथ वो एफर्ट्स नहीं लगाता। ये भी एक कारण होता है फेल्यूर का। तो इससे भी हमें बचना है। हमें रेगुलर बेस के ऊपर अपनी अपलाइन को कांटेक्ट करना है, रेगुलर बेस के ऊपर हमें अपनी डाउनलाइन को
कांटेक्ट करना है, उसके साथ बैठना है, उसके साथ काउंसलिंग करनी है, उसको हमें डायरेक्शन देनी है, तब जाकर हम इस बिजनेस में बहुत अच्छी हम पोजीशन ले सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, एक अच्छे रैंक को अचीव कर सकते हैं और फाइनली एक दिन हम एग्जीक्यूटिव डायमंड बन सकते हैं। बिलीव्स इन रमर्स, हमेशा अफवाहों पर विश्वास करता है। डज नॉट चेक द फैक्ट्स, वो कभी भी फैक्ट्स को चेक नहीं करता कि क्या इसके पीछे क्या कारण है या क्या ये चीजें क्यों हो रही हैं। वो कभी भी उन पॉइंट्स को स्टडी नहीं करता, सिर्फ वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर ही विश्वास करता है, जो बहुत गलत है। और हमें हमेशा फैक्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए, फैक्ट्स को चेक करना चाहिए और अफवाहों से हमें बचना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी धोखा खा जाते हैं और अपना नुकसान कर देते हैं। ग्लिबल अबाउट एनी प्रोग्राम, किसी से भी वो धोखा खा सकते हैं। सो बिलीव्स इन रमर, तो फेलियर लोग जो होते हैं वो हमेशा अफवाहों पर विश्वास करते हैं, वो कभी भी फैक्ट्स के ऊपर नहीं जाते, फैक्ट्स को चेक नहीं करते, जो बहुत गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। does not read nor keep up with the latest happenings in the industry, वो अपने आप को अपडेट नहीं करता कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में नया क्या आया है, इंडस्ट्री में नया क्या हो रहा है, इसको वो नहीं जानता और अपने पुराने तरीके से काम करता रहता है, पुराने पॉइंट्स के ऊपर काम करता रहता है और वो फेल हो जाता है। अगर आपको कामयाब होना है तो हमेशा आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। आपको इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री में जो हो रहा है, इंडस्ट्री में जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उन सब से आपको अवेयर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना कि वो हमें कुछ लोग देंगी तो हमारा बिजनेस चलेगा, और ना ही हमें किसी और कंपनी के बारे में सोचना है। हम एक अच्छी कंपनी में हैं, एक यहाँ पर हम धैर्य बनाते हुए, कमिटमेंट के साथ काम करते हुए, अपनी अपलाइन के टच में रहते हुए, अपनी डाउनलाइन के टच में रहते हुए, अफवाहों से दूर रहते हुए, इंडस्ट्री की जो भी गाइडलाइंस हैं या हमारा जो कंप्लायंस है उसको समझते हुए हम अपने काम को करके यहाँ पर हम कामयाब हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और my dear friends, the next point is does not really believe in the products, वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव नहीं करता या बहुत कम करता है। If you want to become a successful person, if you want to become executive diamond, you have to believe on your products, you have to believe in your products. This is the strong point. Does not handle downlines complaints, दोस्तों वो कभी भी अपनी डाउनलाइन की जो शिकायतें होती हैं, जो उनकी समस्याएं होती हैं, जो उनके चैलेंजेस होते हैं, उनको वो हैंडल नहीं कर पाता, उसमें वो सक्षम नहीं होता, इसलिए वो फेल हो जाता है। ये सबसे बड़ा कारण है। Always handle your downline challenges, complaints, their problems, give them solutions. Lack self-esteem, बहुत बड़ी कमी आत्मविश्वास की, ये उसको पीछे धकेलती है, बिजनेस से बाहर कर देती है और वो फेल्यूर बन जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं करना, खुद पे विश्वास रखना है। यस, वन डे आई विल बिकम executive diamond, definitely one day I will become executive diamond, nobody can stop me, nobody can stop me. This type of confidence, this type of self confidence will create history. So lack of self esteem push you on failure. Not serious about network marketing business, इस बिजनेस को लेकर वो कभी सीरियस नहीं होता, वो इसको लाइटली लेता है,
वो कहता है ये पार्ट टाइम का बिजनेस है, जब मुझे समय मिलेगा तब मैं इसको करूंगा, प्रायोरिटी पे इस बिजनेस को नहीं लेता। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास काम नहीं है इसलिए मैं इंडस वीवा को करता हूं। I don't have any work, so that's why I am doing Indus Viva. So many people saying like this, but Pramod says I am doing Indus Viva. That's why I did not do any work. ये मेरा बोलना है। मैं इस बिजनेस को लेकर पहले दिन से सीरियस हूं। इस बिजनेस को देखकर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये वो रास्ता है जिससे मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं, अपनी फैमिली के सपनों को पूरा कर सकता हूं। सो नॉट सीरियस अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये उसको फेलियर बना देता है। डज नॉट गिव रिस्पेक्ट हिज अपलाइन एंड हिज डाउनलाइन, वो कभी अपनी अपलाइन को अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं देता, वो अपनी डाउनलाइन को रिस्पेक्ट नहीं देता, जिसकी वजह से वो इस बिजनेस से बाहर हो जाता है और फेल हो जाता है। इफ यू वांट टू ग्रो, ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू योर अपलाइन। ही इज अ सिंगल मैन, ही इज अ ओनली वन पर्सन ऑन दिस अर्थ हु वांट्स योर ग्रोथ। वो आपकी ग्रोथ चाहता है, वो है आपकी अपलाइन। डाउनलाइन को हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए ताकि आगे चलकर वो आपको अपनी एक बेहतर अपलाइन समझ सके और आपको वो रिस्पेक्ट दें। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें आपके बिजनेस को मजबूत बनाती हैं, ये छोटी छोटी बातें आपको अचीवर बनाती हैं, ये छोटी छोटी बातें आपको एग्जीक्यूटिव डायमंड तक लेके जाती हैं, ब्लैक डायमंड तक लेके जाती हैं, जो हमारा मिशन है। Next, fails to keep agreements and appointments. Fails to keep agreements and appointments. वो जो अपनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनके ऊपर वो कायम नहीं रह पाता है, जो उसने अपॉइंटमेंट दी होती है उसमें वो फेल हो जाता है और लोग उसके ऊपर अपना विश्वास खो देते हैं, और उसके ऊपर जब अपना विश्वास खोते हैं तो बिजनेस को क्विट कर देते हैं और उनके क्विट करने से वो भी फेल हो जाता है। तो फेल्स टू कीप एग्रीमेंट्स एंड अपॉइंटमेंट्स, इस चीज का हमें अच्छे से ध्यान रखना है और ऐसा काम हमें नहीं करना। ऑलवेज कीप योर एग्रीमेंट्स एंड अपॉइंटमेंट्स एंड प्रूव योर सेल्फ। नेक्स्ट, नॉट एबल टू गिव आंसर ऑफ कस्टमर, उसके पास कोई पुख्ता जवाब नहीं होता अपने कस्टमर का, और इस वजह से वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाता, और जब नहीं कर पाता तो वो फेल हो जाता है। उसके पास नॉलेज की कमी होती है। नॉलेज लेने से वो अपने कस्टमर को एक सेटिस्फाई आंसर कर सकता है और इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता है। Not able to give answer of customer, that's why he become failure. He stopped making effort to call peoples. वो लोगों को बुलाने की एफर्ट जो है, लोगों को अपने पास कॉल करने की, लोगों को प्रेजेंटेशन देने की एफर्ट्स जो है वो बंद कर देता है एक टाइम पर आकर, और वो इस बिजनेस में फेल हो जाता है। स्टॉप्स मेकिंग एफर्ट टू कॉल पीपल्स, वो लोगों को, अपनी डाउनलाइन को अपने पास नहीं बुलाता, उनके साथ बैठकर काउंसलिंग नहीं करता, वो नए लोगों को नहीं मिलता, उनको अपने पास नहीं बुलाता या उनके पास नहीं जाता, और वो फेल हो जाता है। फिजिकली अनफिट, बहुत ज्यादा फिजिकली अनफिट रहने से वो इस बिजनेस में फेल हो जाता है, क्योंकि इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है हमेशा एनर्जेटिक रहना। ऑलवेज बी एनर्जेटिक, ऑलवेज बी एनर्जेटिक, तब आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और जो फिजिकली अनफिट होते हैं वो एनर्जेटिक नहीं होते, तो इस वजह से भी वो इस बिजनेस में फेल हो जाता है। वो उतनी स्ट्रगल नहीं करता, अपना बेस्ट नहीं देता, डज नॉट स्ट्राइव टू डू हिज बेस्ट। वो
अपना बेस्ट नहीं दे पाता जो उसको देना चाहिए, दैट्स व्हाई ही बिकम फेल्यूर। तो दोस्तों, एग्रीमेंट्स जो हमने या अपॉइंटमेंट्स जो हमने लोगों के साथ की हैं, हमें उसके ऊपर खरा उतरना है, उस टाइम के ऊपर उसको मिलना है, और हमें नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम अपने जितने भी कस्टमर हैं उनके सवालों का जवाब दे सकें। हमें एनर्जेटिक रहना है और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस हमें यहां पर देनी है। और आगे बात करें, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाता कि कहां पर वो एक अच्छा बिजनेस कर सकता है, किन लोगों के साथ वो अच्छा काम कर सकता है, ये भी एक कारण बनता है उसके फेल्यूर का। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फियर, उसको हमेशा डर रहता है कि वो कामयाब नहीं हो पाएगा। इनएबिलिटी टू यूज टैलेंट, वो अपने टैलेंट को अच्छे से नहीं उसका इस्तेमाल कर पाता। लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन में नहीं रहता और इस वजह से वो फेल हो जाता है। पुअर सेल्फ एस्टीम, जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं, यानी आत्म सम्मान की कमी की वजह से, आत्मविश्वास की कमी की वजह से वो पीछे हो जाता है। और ये सब कारण है। लैक ऑफ करेज, अपने आप को हौसला नहीं दे पाता, अपनी टीम को हौसला नहीं दे पाता। एटीट्यूड जो होता है उसका बड़ा नेगेटिव होता है, ये भी एक कारण बनता है उसके फेल्यूर का। और हमेशा तैयार रहता है कि मुझे बलिदान ना करना पड़े। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है। ही हैज ऑलवेज एक्सक्यूज, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट सिस्टम एंड कंपनी प्रोडक्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट सिस्टम एंड कंपनी प्रोडक्ट, दीज ऑल आर द पॉइंट्स which will become a person failure, and we have to stay away from these points. So thank you so much. This is the session which I want to discuss with you. These are the points which I want to discuss with you. दोस्तों, ये वो पॉइंट थे जो मैं आज आपके साथ बात करना चाहता था। इन पॉइंट्स से ही लोग जो हैं वो नाकामयाब होते हैं, फेल होते हैं, और हमें इनसे दूर रहना है और हमें एक बेहतर इंसान बनकर, बेहतर नॉलेज लेते हुए, रेगुलर बेस के ऊपर काम करके, एटलीस्ट 3 इयर्स रेगुलर बेस के ऊपर काम करके हमें एक एग्जीक्यूटिव डायमंड बनना है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ वंडरफुल डे।